simultaneously. So first I want to welcome all of you. Thanks for inviting me and thanks for being connecting with me. And let's start with a quick intro of myself. I am Uma Shankar, and it's quite pleasure for me to stand on the front of my Guru Rai sir. Really, he's a champ, and he's a, you can say he's a management guru, and really feeling blessed to stand on front of him. And let me introduce myself now. Actually, I was done my CA from Delhi ICAI, and then I had joined IBM India in 2015. After the IBM India, I was worked with the AIG Analytics, which is a quite famous insurance brand of USA. As you know, in 2008, the slump down in economy, the US government saved the AIG after giving a bailout package. So at that time, the AIG introduced so many new things in the business and to survive in the industry and to change the business plan. So the one of the thing which AIG introduced is the repository system, because in 2008 when AIG issues the policy of you can, I don't know, people know about the debtor term. You can ask me the questions. Actually, AIG issues the policies for the to secure the debtors of the companies. But at the time of 2008 slump down, the debtors are failed to pay the amount to the companies, and AIG need to pay the same. And due to this huge demand of money, AIG was unable to survive in the industry. So that AIG realized the need to introduce a repository system, or you can say to introduce a digital system to connect with all the region of the company in the whole world, because AIG was not aware the global scenario simultaneously and working on the basis of US in the whole world. So which was not good for the company, and company suffered due to the huge losses. So in after 2008, AIG established so many units in every region, like AIG established a unit in UK, in Australia, and in India as well, in Gurgaon. So they have collected the data and they have created a data house to save the data and to get the access from each and every region, to go to the free flow of information and to spread the information to each and every resource to cope up with the industry changes. So first I am going to explain the digital repository. Basically, digital repository is something where we can save data, sculptures, images, or something in the form of digital. For example, we are having our mark sheets. Suppose, what will we do if our mark sheets burn in the fire? We are not having anything. We are just blank. We need to go to the university. If university is not having the record, what will we do? So it's a serious matter for us. So due to this issue, or to overcome from this problem, the emergence of digital repository system arises in the world. And the second one reason is the concept of global village. Now economies are going to be global. For example, you are studying here, and for in future you can go to the US to complete your masters or for PhD. So it's quite difficult for the US universities to verify your documents. So they can contact the college or university by the digital path to get the digital data or documents to be verified from the university. So it's a basically it's a drive, or it's a platform, or it's a virtual storage where the data is stored to share with the needy peoples. Basically,
In for example, you are in student life, you people mostly share the data through the Google Drives. Are you using Google Drive? Yes. Anyone, can you please let me know what is Google Drive? I am just testing you. Any of you? What is Google Drive? Yes. जहाँ पर हम अपनी डाटा यानी कि फोटोज वगैरह PDF वगैरह को सेव रख सकते हैं, और उसे जब तक हम नहीं चाहेंगे किसी को, या फिर पासवर्ड लगा के रख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता जब तक हम नहीं चाहेंगे। Yes. So what is the benefit of Google Drive? You can गूगल ड्राइव पे भी स्टोरेज की जरूरत होती है, Yes. लेकिन उसमें फ्री भी कुछ मिलते हैं, तो हम वहाँ पे सेव कर देते हैं, तो फोन में जगह बच जाती है, वहाँ पे हम कुछ और भी रख सकते हैं। one more. Yes. Please. We can read it anywhere. Yes. And for example, if you lost your phone, Sir, we can email ID, na, we can log in it from the another device. yes, this is the basic need of Google. digital repository system. If we lost our device, if we lost our system, if we lost everything, but our data में बैठा हूँ, मैंने एक डिजिटल एनक्रिप्टेड कोडिंग ऑफ करेंसी प्रिपेयर की, मैंने ये जो बैठे हुए सबसे आगे इनको ट्रांसफर किया, इन्होंने अपने बगल वाले को की, उन्होंने उसको की, उन्होंने नेक्स्ट को की, उन्होंने नेक्स्ट को की, तो एक ब्लॉकचेन बन जाता है। इस ब्लॉकचेन को कोई भी ना ब्रेक नहीं कर सकता। अगर जो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा या डेटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी की कोशिश करेगा, तो पूरी ब्लॉकचेन वहां से करप्ट हो जाएगी और उसका इस तरीके से मार्किंग आ जाएगी कि दिस इज द कल्प्रिट, दिस पर्सन इज द कल्प्रिट। ये किसकी वजह से हो पाया? ये भी इसी की वजह से हो पाया, डिजिटल रिपोजिटरी। अगर ये ही नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ कि जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था स्टॉक मार्केट में, सबने देखी होगी मूवी रिस्क है तो इश्क है, यस, सबने देखी होगी। वो स्कैम उस टाइम पे क्यों पॉसिबल हो पाया था, कभी किसी ने सोचा? वो इसलिए पॉसिबल हो पाया था, जो बैंक रिसीट्स वो शो करता था वो डिजिटल नहीं थी। अगर वो ऐसे ही डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम में होती तो वो हो पाता? क्या बैंक उसको चेक नहीं कर पाता? कर पाता कि नहीं कर पाता? कर पाता सर। तो हर्षद मेहता बन पाता? नहीं सर। हाँ, स्टॉक मार्केट जो होती है, जब तक मैनुअल थी इंडिया में स्कैम होते थे, आज भी स्कैम होते हैं, जैसे वो सत्यम स्कैम हुआ था, लेकिन वो उस तरीके के स्कैम्स नहीं होते। एटलीस्ट आप लोग यू आर एबल टू चेक द लाइव प्राइसेस, समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज को? ये भी किस वजह से? इवन एनएससी जो होता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो भी एक डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम है। वहां पे सारी कंपनीज का प्राइसिंग डेटा जो होता है, कंपनी मैनिपुलेट नहीं कर सकती उसको, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ एनएससी एंड बीएससी। इंडिया में बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज बहुत है, लेकिन जहां लिस्टिंग होती है वो दो ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि दरियागंज के पास दिल्ली में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, वहां सिर्फ ट्रेडिंग होती है लेकिन लिस्टिंग नहीं होती है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग इस सेक्टर में हो, ठीक है। ये लोग खुद एक डिजिटल आप मान सकते हो रिपोजिटरी है। यहाँ हर शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होता है, हर शेयर सर्टिफिकेट में किस टाइम कितने नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड तो अलग हो गया, किस नैनो सेकंड पे किस क्लाइंट ने ट्रांजैक्शन की है उसका पेन नंबर हिट होगा और वो सारा डेटा यहाँ स्टोर होगा। और एटलीस्ट 3 मंथ का तो क्लाइंट का, जो जनरल क्लाइंट होते हैं उनका डेटा होता है, और जो फंड हाउसेस, FIIs एंड DIIs होते हैं उनका 6 मंथ्स का डेटा होता है। ये बोलते हैं ना FIIs ने सेल किया, सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में, वो कहां से पता लगता है? वो वहीं से पता लगता है जब NSE मार्केट आवर्स के बाद, जैसे वो डेटा हम हर 10 मिनट पर रिफ्रेश कर सकते हैं, जब मार्केट आवर्स के बाद डेटा देती है उसी में तो देख के पता लगता है कि FIIs ने इतना बाय किया। FIIs DIIs जानते हैं आप लोग, या वो थोड़ा सा बताऊं आपको? मैं बताता हूँ, ये सबका मुझे पता है, पसंद का टॉपिक है। FIIs कौन होते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स। DIIs कौन होते हैं? जो डोमेस्टिक होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स में कौन होते हैं? जो बाहर के फंड हाउसेस या जो बाहर की इन्वेस्टमेंट कंपनीज इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, वो FIIs होती हैं। DIIs हो गए, जैसे कि किसी के पास म्यूचुअल फंड है, या एनीवन नोज अबाउट द म्यूचुअल फंड? यस, बताइए।
जैसे रिस्की स्टॉक होगा, कई कम रिस्की स्टॉक होगा और उनके एवरेज डाटा से उनका प्रॉफिट मार्जिन। यस, एग्जैक्टली, रियली ग्रेट नॉलेज। म्यूचुअल फंड हाउसेस वो होते हैं जो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, उनके फंड मैनेजर्स होते हैं, वो उस पोर्टफोलियो में अकॉर्डिंग टू रिस्क, अकॉर्डिंग टू कैपिटल, अकॉर्डिंग टू कंपनी एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट एपेटाइट मल्टीपल स्टॉक्स को ऐड करते हैं और उसकी यूनिट्स को क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, राइट? वो भी डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम पे ही काम करते हैं। आपने म्यूचुअल फंड लिया कोलकाता से, आप उसे बेचना चाहते हैं दिल्ली में, आप दिल्ली के ऑफिस में जाइए, उसको कैश करा लीजिए, क्योंकि आपका डेटा कहाँ है? आपका डेटा तो डिजिटल है। आधार कार्ड खुद वही है जो हम आधार कार्ड बोलते हैं, आधार कार्ड भी वही है। म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या होते हैं? ये सारे DIIs होते हैं, ये डोमेस्टिक है, सारे नहीं है, लेकिन जो इंडियन से, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, ये DII का पार्ट है क्योंकि डोमेस्टिक है। अब जैसे कि ये बाहर की भी कुछ कंपनीज है, जैसे इफ्को टोक्यो है, इफ्को टोक्यो का जो इंडियन शेयर है इंडियन है, लेकिन जो फॉरेन पार्ट है इसका, जैसे कि मैंने जिसके साथ काम किया है AIG, आप लोग 90% सोच रहे होंगे कि मैं टाटा AIG के साथ था, नहीं, टाटा AIG इज डिफरेंट फ्रॉम दी AIG। टाटा AIG इज जस्ट अ जॉइंट वेंचर ऑफ AIG विद द टाटा। AIG is a big brand as compared to Tata Insurance. Even PNB is working with the MetLife. Due to the certain government restrictions, they are unable to introduce themselves directly in the Indian market. So they need to take MOU contract from any Indian company to come in Indian market. आया आप लोगों को कुछ आइडिया लगा थोड़ा थोड़ा? अब आप लोग क्वेरीज करो कि इसमें आप लोगों को और क्या समझ में नहीं आया, जो भी डाउट है खुल के पूछो, आप लोग ओपन खुल के पूछो, इट्स ओपन फॉरम। इट्स एन ओपन फोरम। Now let me explain you. Data redundancy means the condition of duplicacy of data. For example, we are having two offices. One is in Delhi, one is in UP. Yes, we issued our material to UP office, and UP office entered the same material, but Delhi office forgot to remove the same from their books of account. Or you can say the Delhi office entered 2 times the data and UP office entered the 1 time. So this is called the data redundancy, multiple times of entry of same data. But in this system, in this digital repository system, the condition of data redundancy is going to reduce almost nil, because once we issue data, once we issue material from Delhi office, the material automatically entered in the books of UP office due to the digital repository system. And I am also going to explain you a very interesting thing about the Canada government. Actually, when I was in AIG, I was worked the AIG Canada. अरे भाई बोर तो नहीं हो रहे? I was worked with the AIG Canada. So in Canada, a province named Alberta. In Alberta, the auto theft cases was so high as compared to whole Canada, because due to the government law in Canada, in Alberta state, you should always open your car lock while parking the car due to the polar bear attacks. Because Alberta is so cold and the government notifies the people and ordered the people to park your car without locking off your car. So people park the car and you know many countries refugees are there in Canada and they are starving for their food and they stole the car and they ran away to take the car and etc. So the insurance companies was facing huge loss. To overcome from this loss, insurance companies creates an association which is called Facility Association. You can note the name and you can check on the net as well. It's quite interesting term.
which is called Facility Association in Canada. Actually, Facility Association is an association of the insurance providers in Canada, auto insurance providers. They collect the data of auto theft, every insurer. So after getting the data on Facility Association, every actuary of the company use the data to design their policy and to decide the premium of car insurance. You know about the actuary actually? Who is actuary? Yeah, let me explain you. Actuary is the person who decide the premium. Anyone having any policy like car policy or life insurance policy, any type of insurance? Anyone is having? Yes. Which kind of policy is it? Mediclaim. Yes, Mediclaim. May I know what amount you have paid to the company? Sir, I don't actually. Like what amount of premium? What is your premium? Sir, I have no idea. जो अमाउंट आपने पे किया कंपनी को कितना किया उस पॉलिसी को लेने Sir, के do you idea? नहीं है? Yes, please tell. Sir, my father is also an insurance company. Oh, great. So he's done my insurance policy. I have too many insurance companies. Yes. So actually he paid 15,000 per 3 after 3 years. Okay. So I have health benefit that is. Okay. So you know who decide this 15,000 amount for this benefit? Sir, company. Actually, company is having a department which is called actuarial department. The work of actuarial department is to assess the risk for the policy. Actuarial is a, you can say actuarial is a person in the world, not even in India, in the world, who assess the risk, assess the future risk. Anyone having BBA background knows about the annuity or hear something about the annuity? They don't have any idea about annuity. Okay. They are just in waiting phase. Okay. So the actuarial persons decide the values of annuity interest and work accordingly to provide the policy premium amount to the company to introduce onto the market. Just think when insurance companies issue a less premium and not able to survive in the industry, what will they do? So they have hired actuarial peoples to design the policy, to assess the risk and to manipulate the policy premium if they need. Just like in last year, companies suddenly raised their premium of Mediclaims due to the pandemic situation. This is due to the actuarial analysis. And every insurance company controlled by IRDA in India and NAIC in US. So basically, banking and insurance companies are the most prestigious and most you can say the rapid users of the digital repository systems to connect from the one country to other country. We are also using, for example, in institutional sector, IITs have also introduced the digital repository system in their library system. Their students can read the books everywhere whenever they are traveling or doing something like this. They are using their library facility. And in India right now, the colleges provide the Google Classroom. Anyone have idea about Google Classroom, which is also a repository system, and they share the Google Drive link to share the files or to share the assignments, which is also the part of the digital repository system. So, कुछ डाउट क्लियर हुए आप लोगों के? तो कोई क्वेश्चन तो कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ भी. एटलीस्ट कुछ पूछो तो सही. यस. सर जो हमारा गूगल ड्राइव में डाटा सेव होता है वो भी तो कहीं ना कहीं जाके सेव होता होगा. यस.
बिल्कुल अगर वहीं पर अगर फाइल डैमेज हो गई तो हमारे डाटा का क्या होगा? नहीं, वहां पे फाइल के एक से ज्यादा बैकअप होते हैं, हमेशा एटलीस्ट 2 बैकअप्स हमेशा होते हैं। जो भी डिजिटल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो एक से ज्यादा बैकअप ऑलवेज अपने पास रखते हैं कि अगर इन सिचुएशन एक बैकअप हमारा लॉस्ट होता है तो दूसरे बैकअप को वो यूज कर सकते हैं। एनीवन एल्स? यस प्लीज आस्क। डाटा का सर आप इतना सर डाटा एनालिस्ट का सर मैंने अभी बहुत नाम सुना, उसका कैरियर प्रोसेस क्या होगा और उसके लिए हमें क्या करना होगा? यस मैं आपको बताता हूँ। डेटा क्या हो सकता है? डेटा कुछ भी हो सकता है। एक इमेज भी डेटा है। इवन जो आप लोग यहाँ अटेंडेंस मार्क करोगे ना, जो आपकी अटेंडेंस शीट है वो भी एक डेटा है। और इवन जो मैं आपको बोलूँ कि ये जो मेरा माइक चल रहा है अगर इसकी कहीं रिकॉर्डिंग होगी वो भी एक डेटा है। डेटा एनालिस्ट बेसिकली क्या करता है? डेटा एक रॉ मटेरियल है। डेटा इज नथिंग, इट्स अ रॉ मटेरियल। लाइक ईंट होती है, ईंट से आप जब घर बनाते हो तभी वो एक फॉर्म में आता है, नहीं तो ईंट तो किसी काम की भी नहीं है। आप उससे किसी की गाड़ी का कांच भी फोड़ सकते हो और आप उससे कोई बिल्डिंग भी बना सकते हो। डेटा इज जस्ट समथिंग लाइक दिस। सो जो डेटा एनालिस्ट होता है वो बेसिकली क्या करता है? डेटा को एक यूजफुल मैनर में लाता है। डेटा एनालिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आजकल आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ पावर बीआई, पाइथन। पाइथन से क्या होता है? हम लोग अपने डेटा की लिंकेज करते हैं। इट्स अ बेसिकली लैंग्वेज टू लिंक द डेटा। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ पाइथन के बारे में। पाइथन का आजकल एक यूज और हो रहा है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन सुना है किसी ने? बहुत आजकल बूम पे है। यस बताओ आप लोग ब्लॉकचेन के बारे में क्या जानते हो? वो भी डेटा एनालिसिस का पार्ट है। यस बताओ। जो आजकल क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। यस एग्जैक्टली, ये भी इसी का एक पार्ट है। ये जो डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम है ये भी इसी का पार्ट है, ब्लॉकचेन भी। अब मैं हाँ यस पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब मैं बताता हूँ क्या होता है ब्लॉकचेन। और आपने पावर बीआई और डेटा एनालिस्ट के बारे में पूछा। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि ब्लॉक्स एक सिस्टम के लिए यूज किया गया है। नोड कौन जानता है? बीसीए वाले यहाँ जरूर होंगे। नोड्स जानते हैं आप लोग? नोड क्या होता है? नोड्स जो होते हैं, चलो मैं मुकेश अंबानी के पास मोर देन 50% है। दिस इज द डिफरेंस। अगर आप टाटा ग्रुप की टोटल एसेट्स को ऐड करेंगे, क्योंकि टाटा इज नॉट अ ग्रुप ऑफ कंपनी, इट्स अ कॉन्ग्लोमेरेट। एवरी कंपनी इज रनिंग इन देयर ओन वे एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। सो अगर आप उनको जब कंसोलिडेट करोगे ना तो टाटा ग्रुप रिलायंस से बहुत बड़ा, इवन अकेला टीसीएस ही प्रॉपर रिलायंस को टक्कर देता है। और टीसीएस भी ये काम करता है, डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, क्लाउड सिस्टम देता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे काम करता है। Sir, we have one question. यस प्लीज आस्क। Please, sir. अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग क्या है, आप लोग एक फ्रेश ग्रेजुएट निकलेंगे तो आप लोगों के पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड होंगे। और ट्रेडिशनल बिजनेस में जाना आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चाहता है। आप में से कोई चाहता है कि मैं दुकान खोल के बैठूं या साड़ी की दुकान डालूं? आई थिंक कोई भी नहीं चाहता होगा। भले ही सबको पता है कि उसमें आमदनी भी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन कोई चाहता है ऐसा नहीं। सब सोचते हैं कुछ नया करेंगे। आपको मैं स्टार्टअप्स के बारे में बताता हूँ। जोमेटो कैसे चला? क्या जोमेटो का अपना कोई होटल है? लेकिन सबसे बड़ी चेन ऑफ होटल्स कौन है? ठीक है। उबर की कोई अपनी कार है? सबसे बड़ी कार रेंटल कंपनी कौन सी है? ओला तो इंडियन है, ग्लोबली यस। ओयो का अब उसने अपने कुछ होटल्स डाले। क्या उसके पास अपनी कोई लैंड प्रॉपर्टी थी? लेकिन आज सबसे बड़ी चेन ऑफ होटल्स कौन है? उसका सेटअप भी कुछ नहीं था। इवन मैं व्हाट्सएप का भी बताता हूँ आपको एग्जांपल। व्हाट्सएप अब जब तक फेसबुक ने नहीं लिया था, व्हाट्सएप के पास सिर्फ एक क्लाउड था और 12 लोग थे, जिससे उसने पूरी दुनिया के अंदर एसएमएस सर्विस ही ठप कर दी। आज कोई एसएमएस की तरफ देखता भी नहीं है। व्हाट्सएप है ना? तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि कुछ न्यू आइडिया लाने का नतीजा, न्यू थिंकिंग।
क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव आइडियाज, ये क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज आए कहाँ से? नई चीजों को सीखने से। जैसे कि जुकरबर्ग था, वो एक स्टूडेंट था, वो फेसबुक लाया क्योंकि उसने कुछ नया किया। उसने पुराना, अगर वो भी चाहता कि मैं एक पास्ता बेचना शुरू कर दूं, तो शायद आज कहीं यूएस में एक वैन लगा के सेलिंग कर रहा होता, लेकिन उसने कुछ नया सोचा। तो आप लोग जो भविष्य के एंटरप्रेन्योर हो, आप लोगों को भी नया सोचना होगा। नया सोचना होगा कैसे, कि कैसे हम इन न्यू सिस्टम्स को यूज करके अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करें। मैं आपको बताना शुरू करता हूँ जोमेटो से। जोमेटो क्या करता है, जब आपने किसी ने ऑर्डर किया कभी जोमेटो से कुछ, तो किस तरीके से मैकेनिज्म होता है? कोई खड़ा होकर मेरे को प्रोसेस बताओ कि क्या किस तरीके से ऑर्डर होता है, क्या होता है जोमेटो? सर हमने पहले तो सिलेक्ट किया हमको खाना क्या है, देन Yes. ऐप ओपन डाउन, हाँ। हमने सर्च किया उसके बारे में, हाँ। जो भी नियर बाय हमारे होटल होगा, हाँ। जो भी उस पर रजिस्टर्ड होगा जोमेटो के ऐप में, उसके पास वो ऑर्डर जाएगा। देन उनका जो भी डिलीवरी पर्सन होगा उसके पास नोटिफिकेशन जाती है, देन वो खाना पिक करने जाता है और हमारे पे डिलीवर। बिल्कुल। अब जब आपने खाना सेलेक्ट किया तो मेन्यू कार्ड कहाँ था आपके पास? ऐप के अंदर। ऐप के अंदर था। क्या जब आपने ऐप डाउनलोड की थी वो मेन्यू कार्ड था उस ऐप के अंदर? No, sir. वो कहाँ से आया? वही मैं जानना चाहता हूँ, वो उस ऐप में कहाँ से आया? ऐप में वो तो जोमेटो के पास आया रेस्टोरेंट से, आपके ऐप में कहाँ से आया? Cloud के बाद। एग्जैक्टली, क्लाउड से। जोमेटो जो वर्क करता है, जब आप जोमेटो का ऐप आप यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, यहाँ आपके नियर बाय अलग रेस्टोरेंट होंगे, उनका अलग मेन्यू कार्ड आएगा, अलग आइटम्स आएंगे। आप 20 किलोमीटर जाएंगे ना, वो आपकी जब लोकेशन को ट्रैक करेगा जीपीएस से, तो वहाँ के रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड आपके में लोड होने लगेंगे। आप डेटा बंद कर दीजिए, देखिए जोमेटो में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जोमेटो क्या करता है, वो डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम, या आप कह सकते हो कि डिजिटल लाइब्रेरी और क्लाउड, उसके ऊपर एरिया वाइज अपनी सारे डेटा को स्टोर रखता है। जब आप जोमेटो को ओपन करते हो, आपकी लोकेशन ले ली उसने उस जगह की। जैसे आज हम लोग यहाँ खड़े, मैं यहाँ से ऑर्डर करूंगा, मेरी यहाँ की लोकेशन ले ली जोमेटो ने। उस लोकेशन को लेके क्या होगा कि उसके जितने भी डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम में यहाँ के रेस्टोरेंट्स का डेटा होगा, वो फेच होना शुरू हो जाएगा। आप देखना थोड़ा रिफ्रेश होने लगता है डेटा उसमें, वो फेच होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं उसमें आइटम्स को सेलेक्ट करूंगा। जब वो मेरी आइटम उसमें सेलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं ऑर्डर जैसे ही प्लेस करूंगा, तो ऑर्डर मैंने तो डिलीवरी बॉय को नहीं दिया, वो ऑर्डर पहले कहाँ जाएगा? डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम में। वहां से वो देखेगा, उनका सिस्टम सर्च करेगा कि कौन सा डिलीवरी बॉय है जो उस रेस्टोरेंट के नियर बाय है, ताकि उसकी कन्वेंस कम लगे, जोमेटो को उसको कम पे करना पड़े। और उसके बाद वो ये देखेगा कि क्या इस डिलीवरी बॉय के पास उस एरियाज के और भी ऑर्डर हैं, ताकि वो एक ऑर्डर के साथ ही 4-5 डिलीवरी कर दे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या थी यहाँ पे, कि उस एरिया में कौन डिलीवरी बॉय है और वो कितने ऐसे ऑर्डर है कि जो उस एक ऑर्डर के साथ कवर कर जाएगा। ये हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम कहाँ यूज हुआ? उस एरिया का मेन्यू कार्ड हमारे लिए जो स्टोर था, दूसरा मेरे ऑर्डर को स्टोर करने के लिए यूज हुआ, और मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली चला। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा था कि बचपन में कि कभी ऐसा भी होगा कि आप लोग ऐसे सेलेक्ट करके अपने घर के पास के किसी भी रेस्टोरेंट से कॉल करके तो ऑर्डर करते थे कि 2 किलोमीटर तक खाना फ्री, डिलीवरी चार्जेस नहीं, वो होता था। अब उसका टाइम गया। कभी सोचा था कि ऐसा होगा? ये हुआ ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। You are the young mind and you are also having the same quality to develop these kind of things in your life and your entrepreneurship career. Zomato वाले भी यंग हैं, सारी कंपनीज वाले यंग हैं। आप सोचो, ये यंगस्टर्स हैं। जैसे कि बिग बास्केट है, बिग बास्केट भी यही करता है। ये जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने भी, इवन रेड बस था, रेड बस ने भी यही किया, डेटाबेस कलेक्ट किया हर जगह का, आज अर्निंग है। कैसे? सब लोगों ने किसका यूज किया? सब लोगों का बेस यही था, डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम। सारे उसी से कनेक्टेड है, क्योंकि आपके फोन में कोई डेटा नहीं है।
आप अगर रेड बस यूज़ कर रहे हो, जोमेटो यूज़ कर रहे हो, ओला यूज़ कर रहे हो, उबर यूज़ कर रहे हो, किसी का भी डेटा आपके फ़ोन में नहीं है। डेटा कहाँ से आ रहा है? उनके रिपोजिटरी सिस्टम से। सो आप ये मान सकते हो कि ये आज की मॉडर्न एरा की एंटरप्रेन्योरशिप का बैकबोन। अगर आपकी इसके ऊपर कमांड नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इसको समझना होगा। इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस आप समझते हैं इसमें चैलेंजेस क्या है? इसमें किसी को क्या लगता है कि इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम में? कोई भी सोच के बताओ अगर किसी को कोई लग रहा हो, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें चैलेंजेस क्या है। बताओ बताओ। सर अभी इतना ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहा है, Yes. तो सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं कि एक बार में पूरा डेटा चल जाए, मतलब साइबर अटैक के कारण। बिल्कुल, सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या है? इलिटरेसी। इंडिया के अंदर खास तौर पर इलिटरेसी का मतलब ये नहीं कि लोगों का पढ़ा लिखा होना नहीं। इलिटरेसी का मतलब है कि लोगों का टेक्निकली लिटरेट ना होना। आप देखेंगे कि लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन टेक्निकली इलिटरेट होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। जैसे कि एक दिन मैं बैंक में गया था, मेरा कुछ KYC अपडेट होना था। वहाँ पे काफ़ी लिटरेट पर्सन थे और वो किस लिए आए हुए थे? वो आए हुए थे कि सिर्फ उनको अपनी पासबुक प्रिंट करानी थी। मैंने बोला कि सर आप अपना नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। बोले कि यस आई एम क्वालिफाइड बट नॉट सो मच टू यूज़ नेट बैंकिंग। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द नेट बैंकिंग। और समटाइम्स क्या होता है कि इंडिया में चीट्स, इंडिया में क्या ग्लोबली चीट्स, हैकिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग अपनी पर्सनल थिंग्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखना सेफ नहीं समझते। जैसे कि गूगल है, गूगल सिर्फ डेटा एन्क्रिप्शन करता है। गूगल की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट बहुत स्ट्रांग है इस चीज़ में, इसीलिए अगर आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट अपना क्लाउड किसी को भी फ्री में नहीं देता है। और जितने भी मल्टीनेशनल्स होते हैं 99.99% they all are using Outlook servers of Microsoft. Even we are also using in our company because Microsoft जो है वो पूरा डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे डेटा हैक ना हो। लेकिन इसके लिए लोगों को भी साउंड होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को भी बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनल सिस्टम है कि ठीक है पुराने लोग ऐसे करते थे, हम भी ऐसे कर रहे हैं। कुछ नए, जो लोग नया सोचते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। लोग नया नहीं सोचते। लोगों को लगता है यार मैंने अपने फ़ोटो अगर गूगल ड्राइव में रख दिए, या मैंने अपने पिक्स रख दिए, या मैंने अपना कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रख दिया, किसी ने हैक करके निकाल लिया, मेरी प्रॉपर्टी के नकली पेपर्स बना लिए। एक ये थिंकिंग है। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। एक दिल्ली में कश्मीरी गेट पे डॉक्यूमेंट हाउस था गवर्नमेंट का, जहाँ पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सेव होते थे, रखे हुए थे पुराने। वहाँ पे आग लगती है, आग लगने में पुराने रिकॉर्ड्स सारे जल के ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स ख़त्म हो गए। अगर वो डिजिटल किए होते या डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम में होते तो एटलीस्ट ये लॉस नहीं होता लोगों का। ये बहुत बड़ा लॉस था इसके। और एक बार ऐसा ही फिल्म सिटी में मुंबई में भी हुआ था कि कुछ पुरानी फिल्म्स थी जो कि इंडियन बोलते हैं, इंडियन गोल्ड आप बोल सकते हो, वो थी, वो ओल्ड मूवीज थी, उनके रील्स चल गए ओरिजिनल, जो कि आज किसी के पास भी नहीं है। जिसमें कि एक तो बहुत फेमस थी, हम लोग स्कूल में जिसके प्रेयर किया करते थे, ये मालिक तेरे बंदे हम, 2 आंखें 12 हाथ, उस मूवी का भी रील वहाँ पे चल चुका है। ये क्यों हुआ? लैक ऑफ डेटा रिपोजिटरी सिस्टम। राइट नाउ आप देखो, आज कोई भी अपने फ़ोन में MP3s को सेव करता है? नहीं। सब लोग ऑनलाइन, कोई स्पॉटिफाई चलाता है, कोई विंग्स को चलाता है, कोई कुछ चलाता है। और एक टाइम पे जब हम लोग छोटे थे तो 2-2 GB के सॉन्ग्स होते थे, फ़ोन में जगह ही नहीं बचती थी। ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंज है। जब हमने उसको वहाँ पे एक्सेप्ट किया है तो हमें इसको यहाँ पे भी एक्सेप्ट करना होगा। बोथ साइड इक्वल करनी होगी। अकाउंटिंग बोलती है ना, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। हम लोगों ने डेबिट पे तो यूज कर लिया, क्रेडिट पे यूज नहीं किया। क्रेडिट पे जब तक हम डिजिटाइज नहीं होंगे
डिजिटल नहीं होंगे तो तब तक हमारी लाइफ बैलेंसिंग नहीं। अब आप लोग क्वेरीज कीजिए, किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझना हो, आप लोग पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड भी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे कि लाइक अगर किसी को ब्लॉकचेन भी मैंने थोड़ा सा बताया था, उसमें भी किसी को डाउट हो, या ये डिजिटल करेंसी या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो होती है डिजिटल डिपॉजिटरी सिस्टम से, कुछ भी इस सिस्टम से रिलेटेड XYZ एंड टू एंड आप लोग पूछ सकते हैं। यार डाउट्स तो क्लियर करो अपने। मुझे लगता है सब लोग बोर हो रहे हैं, तो अपने डाउट्स तो क्लियर करो, क्वेश्चंस रेज करो। एटलीस्ट पूछने में कुछ भी गलत नहीं होता। हम लोग तो ऐसे थे कि अपने टाइम पे जो भी जरा सी भी चीज आती थी टीचर कहते थे भाई इतना सोच तो लिया करो, इतना सारा पूछते हो। आप लोग कुछ पूछ ही नहीं रहे, पूछिए। मैं देखना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। एटलीस्ट यही बताइए कोई कि आप लोग क्या सोचते हैं डिजिटल डिपॉजिटरी सिस्टम्स के बारे में, कि आप लोग इस पर कैसे वर्क करेंगे, इसे कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप में यूज करेंगे और कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं। यस Sir, can someone make profit by exploiting this online repository system? यस So, For example, Microsoft, they are providing this service to their clients. They are doing nothing for their clients. Nothing. Even they are don't having a support panel or support customer care service. But they are earning huge amount. They are earning amount per GB, per gigabyte. And you know, Microsoft, the 35% of revenues are coming from this system to the Microsoft. Right now, Microsoft is not so popular in the software due to the emergence of Apple and the iPods, etc. People are less now going to be less to use the window, and it's a, you can say, the symbol of prestige to use the Apple laptop, MacBook. But now Microsoft earning a huge amount of money due to this system. sir, Yes. so there are some companies that provide these facilities without any cost. Yes. So how do they make profits? Yes, they are earning through the advertisements. Like Google earning from the advertisements. And if you upload something in Google, if you are not having the private data, Google is having a strict policy for private data, and if you are uploading something, you can check there are some ads, advertisement. Google earning from these ads. And sir, can we make up an organization to provide this facility? Yes, why not? So You can. Sir, then we should need a large amount of investment for that. No, it's not necessary. Yeah, amount is large, but not so much. Not so much. Sir, do angel investors invest in these things? Angel, you mean angel broking? No, angel investors, though some people who give money to small people Yes, for in the start. there are so many people. But you need to start from the first step. So what is the first step? First step, just introduce yourself to the entrepreneurship. Just make a new idea. Idea is the first step. If you have a plan, then you will definitely get the investors. Yes. Yes, please. डिजिटलाइजेशन के टाइम में सर ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। Yes. यूपीआई इंडिया ने सबसे पहले क्रिएट किया, इंडिया का यूपीआई है। हम्म। सर यूपीआई मॉडल काम कैसे कर सकता है, इनकम कैसे होता है, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इनकम कैसे होता है? UPI model you can say भीम। एक्चुअली क्या है कि पेटीएम जो है, पेटीएम एक डिफरेंट है। पेटीएम यूज करता है भीम को, भीम के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, लेकिन वो भीम नहीं है। भीम क्या है, बेसिकली भारत इंटरफेस है गवर्नमेंट का, राइट। और भीम भी डिजिटल डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू ही कनेक्टेड है ईच एंड एवरी बैंक। इसका वर्किंग जो होता है, इसका वर्किंग होता है एनक्रिप्शन बेस्ड।
आपने कभी भीम पे रजिस्टर किया होगा तो आप देखना वो आपकी सिम वेरीफाई मांगता होगा। यस सर। जब सिम वेरीफाई होती है तो एक बहुत सारे वो टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे हुए एक SMS जाता है आपके फोन से। वो बेसिकली हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो बेसिकली एक एनक्रिप्टेड डेटा होता है। जब वो आपके फोन से SMS के थ्रू पहुंचता है डिजिटल डिपॉजिटरी सिस्टम में, तो वो आप मान सकते हो कि एक चाबी है जो सिस्टम को ओपन कर देता है आपके फोन के लिए। इवन अगर आप अपने फोन में जिसमें कि आपका भीम UPI चल रहा है, सिम को रीइंसर्ट करोगे, वो आपसे फिर से मांगेगा कि सिम वैलिडेट करो आप, और वो वैलिडेशन उसी तरीके से होगा। ये बेसिकली अर्निंग इन लोगों की किस तरीके से है कि जो हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बंडल ऑफ बैंक्स हैं, जो उन पर ट्रांजैक्शंस लोड कम हुआ है, तो एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है उस चीज को कम करने के लिए। बाकी जो पेटीएम वगैरह है, इनका अर्निंग मॉडल मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्या करते हैं। वो तो एक आप मान सकते हो कि बेसिकली नॉन प्रॉफिट ही है भीम, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मैं पेटीएम का आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि इसका मॉडल क्या है। पेटीएम का तो बैंक आता है और उसका पेटीएम वॉलेट हो जाता है। नहीं, हमारा जो वॉलेट मनी है उससे भी होता है उसका। वॉलेट बैंक होता है। जो हमारा वॉलेट मनी होता है, एक बैंकिंग स्कीम होती है, उसमें क्या होता है, जो स्मॉल फंड्स होते हैं ना, जैसे ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, ये भी करते हैं, तो उसमें 7 डेज के लिए 3 डेज के लिए उस पर भी इनको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि अमाउंट इतना ज़्यादा होता है तो वो इंटरेस्ट इतना बड़ा हो जाता है अमाउंट कि वो करोड्स ऑफ रुपीस में उसकी इनकम हो जाती है। जैसे कि एक कंपनी आई है क्रेड के बारे में लोगों ने ऐड जरूर देखा होगा। क्रेड के बारे में पता है कि क्रेड बेसिकली कैसे काम करता है? यस, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो टाइमिंग हो जाती है कि कब उसका ड्यू पेमेंट करना है, तो एक टाइम रिमाइंड कराता है। और क्रेड को बेनिफिट क्या? गूगल एड। यस, लेकिन क्रेड के ऊपर इतनी एड्स नहीं आती, फिर क्या बेनिफिट है? क्रेड का तो क्रेडिट कार्ड के वो बिल पे करवाता है, वो उनका कहते हैं, हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। आप जब क्रेडिट कार्ड से अपना बिल पे करते हैं तो उसके बाद आपको वो कुछ ना क्रेडिट कॉइन्स देता है, आप उसको रिडीम करते हैं तो उसमें आपको ऑफर देगा कि आप 15% ऑफ ये प्रोडक्ट ले लो। पहला है उसका प्रोडक्ट सेल, 15%, 20% इस तरीके से ऑफर देके, जो वो ऑफर देता है वो कंपनी सारी उसकी वेंडर्स होती है और उसमें उसका प्रॉफिट ऐड होता है। क्रेडिट बेसिकली इस तरीके से काम करता है। इसका खुद का भी एक डिपॉजिटरी सिस्टम है कि जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है। इवन ये क्या करते हैं, आपकी मेल्स को फेच करते हैं और उन मेल्स में जो इनको लगता है कि आपने ये चीज़ें सर्च की हैं या कुछ हैं, वो डेटा गूगल पे जाता है। गूगल को ये लोग डेटा भी सेल करते हैं, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप देखना आपके पास फिर एड्स आना शुरू हो जाते हैं गूगल पे। कभी आप लोगों ने सोचा, आप लोगों ने कोई चीज़ सर्च की है, वो गूगल को कैसे पता है, फेसबुक को कैसे पता है? वो इसी तरीके से पता है और उस डेटा को सेल करके ये लोग अर्निंग करते हैं। डेटा सेलिंग इटसेल्फ अ बिजनेस। यस, चोरी भी होती है, इसीलिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MX को भी बैन किया हुआ है, क्योंकि MX जो था पूरे कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहा था। इवन मास्टर कार्ड भी अभी दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू इशू न्यू क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया। मास्टर कार्ड्स एंड MX दोनों को गवर्नमेंट ने स्टॉप किया हुआ है। ओनली वीजा एंड रूपी चल रहा है इंडिया में, और डिनर्स क्लब और पेरिस कीजिए। बिल्कुल गूगल पे। यस, सर जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं गूगल पे सर, यहाँ कोई वैलेट होता नहीं है, तो सर हम जैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर फिर आपके अकाउंट में आता है। हाँ, उसके बाद सर कैशबैक मिलते हैं मेरे को भी, और सम टाइम सर के एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आते हैं, सर वो ये मैनेज कहाँ करता है, कहाँ से पैसा आता है? गूगल पे। बिल्कुल, गूगल पे के पास क्या है आप देखेंगे, ये गूगल पे से और भी बहुत सारी सर्विसेज देता है। गूगल पे के थ्रू आप IPOs भी अप्लाई कर सकते हैं। गूगल पे के जो अपने वेंडर्स हैं, जैसे कि कई बार आप देखेंगे, आप फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कई बार आप देखना कि गूगल पे के थ्रू पेमेंट करने पे इतनी छूट, तो उससे भी गूगल पे को कमीशन मिलती है। और ये जो कैशबैक है, आप देखना आजकल कैशबैक कम आ रहे होंगे। हाँ, क्योंकि इसकी अर्निंग्स डाउन है, ड्यू टू पेंडेमिक लोगों की इनकम डाउन है, लोग इससे स्पेंड कम कर रहे हैं, इसलिए इसकी अर्निंग डाउन है। दे आर यूजिंग फ्री प्लेटफॉर्म ऑफ UPI to make the transactions. They are doing nothing, but they are earning money from your data and from your vendors. Sir, Yes.
जब पेटीएम स्टार्टिंग में आया था तो उस टाइम वो जो कैशबैक होता था वो डायरेक्टली हमारे वॉलेट में आता था, बट नाउ दे आर गिविंग दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स। तो यहाँ इस मतलब इस आइडियोलॉजी के पीछे क्या? यस, मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसे बोलते हैं बिजनेस में, एक आप लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन। जब इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होती है कोई भी कंपनी, तो वो क्या होता है, उसका एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या था कि जिस टाइम पे लोगों को कैशबैक मिलता था ना वॉलेट में, तो कुछ लोगों ने तो इसीलिए कि एक ऑफर आया कि आइसक्रीम लोगे आप लोग पेटीएम के थ्रू ऑर्डर करो, उससे जोमेटो से आपको 5 रुपये में आइसक्रीम, 10 रुपये में आइसक्रीम डिलीवर होगी। गुड़गांव में आया, लोगों ने पेटीएम वॉलेट ले लिए। 2016 का मैं बता रहा हूँ। इवन आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन गुड़गांव एट दैट टाइम, सो आई वॉज ऑल्सो ऑर्डर्ड आइसक्रीम। यस, लेकिन क्या हुआ कि जब धीरे धीरे जब डीमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो गई। पेटीएम जो था, पेटीएम मार्केट का एकदम किंग हो गया, क्योंकि लोगों को दिखा कि हम कैश निकाल नहीं सकते। पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी था, इवन अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन पेटीएम के साथ वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मेरे को कभी मौका मिला, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि पेटीएम किस तरीके से, और ये एक बहुत बड़ा आप लोग कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रन हो रहा है। इट्स नॉट ओनली फॉर शर्मा जी, इट इज हैविंग अ बंडल ऑफ कंपनीज। तो पेटीएम ने क्या किया, अब पेटीएम पॉइंट्स देता है। अब एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, जैसे कि आप लोग मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, 999 लिखा होता है, कंपनी 1000 नहीं लिखती, क्योंकि एक डिजिट कम करने से वो 1000 के अंडर आ गया। इसी तरीके से क्या है, अब पेटीएम अगर आपको 100 रुपये की ट्रांजेक्शन पे 1 रुपये का कैशबैक देगी, आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ पे वो 20 पॉइंट देगी, आप लोगों को लगेगा 20 पॉइंट है। ऑल दोज पॉइंट की जब कैश होने का नंबर आता है, वैल्यू बहुत कम रह जाती है। उन्होंने बेसिकली अपनी कैश की क्वांटिटी को रिड्यूस किया है और उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके बढ़ाया है, ताकि अपनी इनकम को वो लोग इंक्रीज कर सकें। यस प्लीज। सर, ये मॉल्स वगैरह में जो गेमिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम टिकट्स खरीदते हैं और फिर हमने मान लीजिए जो रोलिंग बॉल्स वगैरह होता है, हमने वो किया, फिर हमें वो टिकट्स मिलते हैं, हाँ। तो वो एक तरीके से पॉइंट्स में वो हो जाता है इंक्लूड। तो जैसे मान लीजिए 800 पॉइंट्स है, आप जाते हैं काउंटर पे तो आपको एक फ्रूटी देते हैं। हाँ जी। तो उस 800 पॉइंट का उस फ्रूटी का लाइक क्या चीज़ है ये? मैं बताता हूँ, ये उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप सोचो, अगर आपके पास 600 पॉइंट है, आप 800 करने के लिए फ्रूटी से ज़्यादा पैसे वहाँ पे स्पेंड कर दोगे, लेकिन आपको क्या है कि आपको अपने पॉइंट 800 करके वो फ्रूटी लेनी है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये आजकल बहुत सारे बिजनेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फ्लिपकार्ट पे होता है। आपने आज कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से परचेज किया, उस प्रोडक्ट का क्या होगा कि जब वो आपके पास आ जाएगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब परचेज करेंगे, आपको 50 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। आप उस 50 रुपीज़ के ऑफ के लिए नेक्स्ट टाइम 1000 रुपये का प्रोडक्ट अगेन फ्लिपकार्ट से परचेज करोगे। ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की मार्केट में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट हाइप किया गया। अब ये जो पेटीएम का आईपीओ आया था, इसमें लोगों को इतना मार्केट में सेंटिमेंटल किया गया, इतना मार्केट हाइप किया गया। इवन मैंने इसका बिजनेस मॉडल देखा था, और जो मेरे सर्कल में नियर अबाउट 50 पीपल्स थे, मैंने उनको बोला कि गलती से भी इस आईपीओ में हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा, ये बर्बाद करेगा। और 2 मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने एक ही बात बोली, पेटीएम इज क्वाइट फेमस और ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। दोनों का कल मेरे पास फोन आया रात को, एक का 10:30 बजे आया और एक का 1:30 बजे आया। दोनों के 2 लॉट निकले थे और दोनों 27% अपनी कैपिटल खो के मेरे को फोन कर रहे थे कि भाई ये हुआ क्या। सो किसी भी बिजनेस में जाने के लिए ये जो आजकल जो हाइप स्ट्रेटेजी यूज हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। अगर हमें किसी भी बिजनेस में जाना है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल फर्स्ट। यस, एनी क्वेश्चन? यस प्लीज आस्क। यस, क्या चीज? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा होता है आईपीओ लाने के लिए आपके सेबी के रूल्स होते हैं, आपको वो फुलफिल करने होते हैं। आपकी कंपनी 5 साल तक कांस्टेंट प्रॉफिट में होनी चाहिए, बहुत सारे रूल्स हैं। जब आप वो सारे कंप्लायंस पूरे कर लेंगे,
तो आईपीओ के लिए आप लोग अप्लाई करते हो। जब आपका आईपीओ आता है तो ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है या नहीं। जैसे कि एक कंपनी है जो ये क्या बोलते हैं, ये लेडीज प्रोडक्ट बेचती है, लाइक ये जीन्स, टॉप्स, मेकअप एसेसरी, नायका का आईपीओ आया था। उसका मैंने बिजनेस मॉडल देखा था और जिसने भी मुझसे पूछा था मैंने बोला था आंख बंद करके इसके आईपीओ में करना, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि जब मेरे को इतना आइडिया नहीं है, इवन मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि नायका के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि लोग नायका से प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसने मुझे एक चीज बताई कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेलर्स बैठे होते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। समटाइम्स दे सेंड यू द डुप्लीकेट आइटम्स, बट नायका इज नॉट हैविंग एनी सेलर डेटा, दे आर नॉट हैविंग एनी सेलर, दे सोल्ड देयर आइटम्स डायरेक्टली टू देयर कस्टमर्स। सो उससे क्या होता है कि नायका डायरेक्ट परचेज करती है किससे, हाई एंड ब्रांड से, उन प्रोडक्ट्स को सेल करती है अपने कस्टमर को, तो कस्टमर को भी ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है और जो बीच का जो डीलर नेटवर्क हट जाता है उसका बेनिफिट नायका लेती है, थोड़ा बेनिफिट कस्टमर को देती है। तो नायका के आईपीओ के लिए मैं पूरा डैम श्योर था कि आईपीओ जो है 100% अप जाएगा। और आईपीओ में एक चीज और होती है, आपका सब्सक्रिप्शन स्टेटस, आपका आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ ये भी डिपेंड करता है। मैं कभी भी आईपीओ अप्लाई करता हूँ, आप लोगों को भी एक चीज बताता हूँ मैं, आप लोग एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर हो, अगर किसी आईपीओ को हम लोगों को अप्लाई करना है तो जिस दिन आईपीओ क्लोज होना होता है ना, उस दिन 2 से 3 बजे के बीच, क्योंकि 4:45 बजे आईपीओ क्लोज होता है, 3 बजे 4 बजे तक हमें ये देखना होता है कितने टाइम सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब। क्योंकि स्टार्टिंग डेज पे कंपनीज क्या करती हैं कि बहुत सारे अकाउंट से इनके क्या होता है कि बहुत सारे वो होते हैं सेलर्स होते हैं, यू कैन से अंडरराइटर्स होते हैं, उनको बोल देते हैं कि आप हमारे आईपीओ को सब्सक्राइब करवाओ। बाद में लास्ट डे क्या करते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। लोग फर्स्ट डे और सेकंड डे आईपीओ में घुस जाते हैं और बाद में देखते हैं, जैसे पेटीएम में हुआ, आईपीओ गिर गया तो 1 घंटा पहले आप लोग एनएससी से उसका डेटा लेके उसको खुद से एनालाइज कर सकते हैं। आईपीओ इज नॉट अ बिग डील कि आईपीओ ऊपर जाएगा या नीचे, आईपीओ को आप लोग उससे भी एनालाइज कर सकते हैं। और आईपीओ लाने के लिए आप लोगों की अगर कंपनी 5 इयर्स अच्छे से चलती है और आप लोगों को बोलते हैं कि एक नाम मिलने लगता है मार्केट में और आप लोग सारे कंप्लायंस को फुलफिल करते हैं, डेफिनेटली आपका आईपीओ भी है। और हर एक यंग एंटरप्रेन्योर को ये सोचना चाहिए, यस आई विल डू, आई हैव टू डू। ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक अब किसी की कोई क्वेरी तो है नहीं, so हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। रियली इट्स अ ग्रेट सेशन एंड अ वंडरफुल ऑडियंस। Great to meet with all of you and to interact with all of you. Thanks so much. Thank you.